Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today we will continue the same topic, which is image segmentation. So in the last lecture, what we have covered is thresholding method, for which we were learning that how to segment the image using thresholding, and then there were three basic types of thresholding. One is called global thresholding, another one is adaptive or dynamic thresholding, and then we learn that how is a local thresholding. So in all these three types, they are basically different from each other, and the reason is selection of the threshold value. So how to select a threshold value, based on that it is different. In global thresholding, normally what we do, we select one threshold for the complete image, and based on that threshold we can make segmentation. Normally the threshold is selected using histogram. So based on that histogram peaks and valleys, then we identify where the threshold value is, and then from there we can make the segmentation. And then again we have adaptive or dynamic thresholding, where it is totally depending on the image or the histogram, and then based on that we can select the threshold accordingly. And after that we also learn that we can use a local threshold, which is the information of neighbors, and then based on that neighbor information we can select some threshold values from where we can make the segmentation. So how to have this local information and how it is useful, because it is useful in a sense that if there is a boundary of the area or the region or maybe the object, then this boundary will have some neighbors pixels, and if we can identify this boundary, then we can have these neighbor pixel, and based on derivatives we can also identify the magnitude and the direction of it, the angle of it, and then based on that we can know that where this particular pixel lies, and based on that we can select the image. We can give them some coding, so we convert the image into plus sign, minus sign and zero sign, and based on that then we can read it and just simply segment the image. So today we will learn that what are the remaining few methods. That one of them is region growing, and then region splitting and merging, and texture based segmentation. And there are also some other color based segmentation. There are so many other, but we will just have an overview so that we can have the basic fundamentals of it, and then we will understand that most of the segmentation have more or less similar mathematical formulation. If we know the basic one, then we can build upon it. तो हमारे पास जो मेन दो अप्रोचेस हैं रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन के, उसमें रीजन ग्रोइंग और रीजन स्प्लिटिंग आता है, और इसके बाद हमारे पास टेक्सचर बेस्ड सेगमेंटेशन भी है और कलर बेस्ड भी है, और इस तरह के और भी हैं. तो हम उन सब में से चंद एक जो अहम है उनको डिटेल से देखेंगे. तो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है? एजेस एंड थ्रेशोल्ड समटाइम डू नॉट गिव अ गुड रिजल्ट्स ऑफ सेगमेंटेशन. अब ये पॉसिबिलिटी है कि हम अगर एजेस की बेस पर सेगमेंटेशन करते हैं, जो कि लोकल थ्रेशोल्डिंग हम यूज़ कर रहे थे, या अगर हम सिंपल थ्रेशोल्डिंग, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग या अडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग यूज़ करते हैं, तो उसकी बेस पर हमारे पास सारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते. उसकी वजह यह है कि कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें एजेस आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, या वो जो हम हिस्टोग्राम ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है. तो इस बेसिस पर जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर नहीं आएंगे. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं. सो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी ऑफ सिमिलर पिक्सेल्स इन अ रीजन. तो इसको रीजन बेस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो हम सिमिलैरिटी निकालते हैं पिक्सेल्स की, और अगर वो पिक्सेल्स आपस में उनकी कोई सिमिलैरिटी है, वो आपस में कुछ कनेक्शंस हैं उनका, तो हम उस बेसिस पर उसकी सेगमेंटेशन कर लेते हैं.
ईच रीजन मस्ट बी यूनिफॉर्म। अब अगर हमने सेगमेंटेशन करनी है रीजन की बेस पर, उसमें सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करनी है, तो हर एक रीजन जो है वो सेपरेट होगा, वो यूनिफॉर्म होगा विद इन इटसेल्फ। तो एक रीजन है तो वो उसका जो कलर है वो सेम रहेगा या उसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रीजन है। कनेक्टिविटी ऑफ द पिक्सल विद इन द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो विद इन अ रीजन जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब सिमिलैरिटी निकालते हैं तो हम इसी बेस पर निकालते हैं कि उनके आपस में कोई रिलेशनशिप हो, या वो कलर की बेस पर सेम हो या इंटेंसिटी की या उसमें टेक्सचर सेम हो, तो हम उस बेसिस पर उसकी कनेक्टिविटी निकालते हैं और उस बेस पर हम उसको सेगमेंट करते हैं कि ये एक सेगमेंट एरिया है। देयर आर टू मेन अप्रोचेस to region based segmentation. One is region growing and other one is region splitting and merging. So there are if we are talking about the region based segmentation, then there are two basic one. One is called region growing and another one is region splitting. So how is region growing actually working? So there are very basic few steps. So one is start from a set of seed point, and from these point grow the region by appending to each seed those neighbors pixel that have similar properties. हम सिंपली इसमें ये करते हैं कि एक सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वो मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं और वो एक पॉइंट भी हो सकता है, और उसको हम कहते हैं कि ये सीड पॉइंट्स है, या एक पॉइंट है तो वो सीड पॉइंट होगा। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, और जो उसके नाइबर्स के जितने भी पिक्सेल्स हैं उनकी सिमिलैरिटी चेक करते हैं कि क्या वो उसके प्रॉपर्टीज़ जो हमने सीड पॉइंट लिया है उसके साथ मैच कर रही हैं या नहीं। अगर तो मैच कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, द सिलेक्शन ऑफ द सीड पॉइंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम व्हेन prior information is not available. Clustering technique can be used. Compute the above mentioned properties at every pixel and use the centroid of clusters. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये सीड पॉइंट जब सेलेक्ट करते हैं तो ये कैसे सेलेक्ट करते हैं। हम अगर एक इमेज है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने एरियाज से हमने स्टार्ट करना है। हमारे पास एक सिंपल एक पिक्सल है तो वो कौन सा पिक्सल हमें लेना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में उसके साथ मैच करने चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे टेक्निक के ऊपर, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है इमेज की उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक है क्लस्टरिंग टेक्निक। क्लस्टरिंग टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो सिंपल हम स्मॉल क्लस्टर्स बना लेते हैं हर एक इमेज में, हर एक रीजन के, और उन क्लस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उनमें जो भी इमेजेस जो भी पिक्सेल्स हैं वो मैच कर रहे हैं तो हम उसको एक क्लस्टर में डालते जाते हैं। तो क्लस्टर बेस पर हो सकता है, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम रैंडम पिक्सेल्स लेते हैं या हम कलर की बेस पर, डिपेंड करता है कि हम सीड पॉइंट हमारा जो मकसद है एप्लीकेशन है वो क्या है, तो हम उसके लिए हम सीड सेलेक्ट करते हैं। द selection of similarity criteria depends on a problem under consideration and the type of the image data that is available. अब हमने सिमिलैरिटी की बात जब की तो सिमिलैरिटी किस तरह चेक होगी वो भी उस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तो हमारे पास ग्रे स्केल इमेजेस हैं तो ग्रे स्केल इमेजेस में हम फिर उसकी इंटेंसिटी को देखेंगे, और अगर उसमें साथ में कोई टेक्सचर के चेंजेस आ रहे हैं तो हम उस टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो अगर कलर इमेज है तो फिर हम उसमें कलर की प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, उसमें टेक्सचर की देखेंगे, और रीजन्स के लिहाज से डिपेंड करता है कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ पर हैं। तो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का बेस पर हम ये जो सिमिलैरिटीज़ का क्राइटेरिया है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं जहाँ हम बात करते हैं कि सीड पॉइंट कैसे सेलेक्ट की जाए, तो सीड पॉइंट्स भी टोटली डिपेंड है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, और दूसरा जो है वो टोटली डिपेंडेंट है अगेन हमारे एप्लीकेशन, हमारे जो हम इमेज के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम एक इमेज ले रहे हैं जो कि
फॉर एग्जांपल ब्रेन का एमआरआई है, तो हमें ये पता है कि जो ब्रेन का एमआरआई है वो इमेज जो हमेशा जो ब्रेन का सेंटर है वो इमेज के सेंटर से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से हमें ये आइडिया हो सकता है कि अगर हमने उसमें सीट सेलेक्ट करने हैं तो सीट्स कहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि इमेज जो है बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जब हम कोई और इमेज लेते हैं, नॉर्मल ट्रैफिक के सिचुएशन में इमेजेस ले रहे हैं, नंबर प्लेट्स के सिचुएशन में ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि गाड़ी के जो नंबर प्लेट्स हैं वो हमेशा हर गाड़ी के सेम लोकेशन पर नहीं होते, वो डिफरेंट लोकेशंस पर लगे होते हैं, उसका साइज़ डिफरेंट होता है। इस वजह से हम वहाँ पर फिर अगर सीट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। और इसी तरह उसके जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर हम एमआरआई इमेजेस लेंगे तो वो ग्रे स्केल हो सकते हैं, वो कलर भी हो सकते हैं। सेम अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास कलर्स भी हो सकते हैं, वो इंफ्रारेड भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट इमेजेस भी हो सकते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि हम कौन से एप्लीकेशन के लिए जो सेगमेंटेशन है वो कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टर मस्ट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद कनेक्टिविटी एडजेंसी इंफॉर्मेशन। अगर हमने सिंपल उसकी कनेक्टिविटी देखनी है तो हम डिफरेंट किस्म के डिस्क्रिप्टर्स यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शन एंड एडजेंसी को चेक करने के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ स्टॉपिंग रूल। ग्रोइंग अ रीजन should stop when no more pixels satisfy the criteria for inclusion in that region। अब हमने एक पिक्सल से स्टार्ट किया जिसको हम सीड पॉइंट कहते हैं, और हम उसके नाइबर्स में जो उसके डायगोनल और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नाइबर्स हैं उनको हम कंटिन्यूसली एक्सपेंड करते जा रहे हैं और हम उसकी सिमिलैरिटी मैच करते जा रहे हैं। अब हमने इसको स्टॉप कैसे करना है? स्टॉप ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जब कोई भी पिक्सल वो क्राइटेरिया कंप्लीट ना कर रहा हो जो हमारा सिमिलैरिटी के लिए है, जहां हम सीड पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया, तो हम वहां पर स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये एक रीजन कंप्लीट हो गया, इससे बाहर का रीजन जो है वो कोई और रीजन है, वो कोई दूसरा एरिया है, तो हम वहां के लिए अलग सेगमेंटेशन पे करेंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इमेज के बॉर्डर्स तक पहुंच जाएं और हमें कम्प्लीटली उस एरिया तक चले जाएं जहां पर इमेज के बॉर्डर्स हैं और उसके बाहर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये जो इमेज है इसमें हमारे पास कोई सेगमेंटेड एरिया नहीं है, ये पूरा इमेज जो है एक ही रीजन है। तो इस तरह हम इसको स्टॉप कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। व्हेन अ मॉडल ऑफ expected results is partially available, the consideration of additional criteria like the size of the region, the likeliness between a candidate pixel and the pixel growing so far, and the shape of the region can improve the performance of the algorithm। अब हमने अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं हम, क्योंकि जब हम ये काम करेंगे, रीजन ग्रोइंग करेंगे, तो ये हमारे सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम जब हर बार नेक्स्ट पिक्सल जब भी ऐड होगा तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये सिमिलैरिटीज़ की है कि नहीं। तो अगर हमने सिमिलैरिटी की कंडीशंस बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्लो उसकी परफॉर्मेंस होगी, वो जो सेगमेंटेशन है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमने अगर क्राइटेरिया कम रखा है सिमिलैरिटी के लिए तो उस पर कम टाइम लगेगा। तो अब ये टोटल हमारा ट्रेड ऑफ है कि हम क्या स्पीड चाहते हैं या हम एक्यूरेसी चाहते हैं, या जो टोटली डिपेंडेंट है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो हम ये सिमिलैरिटी के लिए जो भी क्राइटेरिया रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना है ताकि हमें उसमें प्रॉब्लम्स ना हो उसको अचीव करने में। सो टू कंक्लूड दिस, रीजन ग्रोइंग इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन कंट्रोल ग्रोइंग ऑफ सम इनिशियल पिक्सल सीड। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो एक्चुअली रीजन ग्रोइंग क्या है, हम सिंपल एक पिक्सल लेते हैं और उसको
एक ख़ास तरीके के साथ ग्रो करते जाते हैं, उसके नाइबर्स को देखते जाते हैं और हम उसकी सिमिलैरिटी देखते जाते हैं कि क्या जो उसके एडजेसेंट पिक्सेल्स हैं उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल ये प्रोसेस है। सिलेक्शन ऑफ द सीट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेटिक प्रोसीजर बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। हम अगर सीट की सिलेक्शन करते हैं कि किस पॉइंट से हमने मैचिंग स्टार्ट करनी है, सिमिलैरिटी चेक करना है, क्योंकि जो सीट पॉइंट होगा उसके साथ हम नाइबर्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर सीट पॉइंट के साथ वो मैच हो रहे हैं तो वो उस रीजन में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? एक इमेज में हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या हम कोई जो सिंपल क्राइटेरिया है ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग बेस्ड टेक्निक हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ और तरीके यूज़ कर सकते हैं जिससे हम सीट की सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रायर नॉलेज कैन बी इंक्लूडेड। अगर हमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है इमेजेस से रिलेटेड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हमें पता है कि MRI स्कैन है ब्रेन का तो हम वो बहुत इजीली उसमें हमें इंफॉर्मेशन है कि इमेज जो है वो किस एरिया में आएगा, वो जो कंटेंट्स हैं वो कहाँ पर होंगे और कलर की क्वांटिटी क्या होगी, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, तो हम उनको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन डिपेंडिंग है और ये हमने ऑलरेडी देखा कि जो ये सीट की सिलेक्शन या रीजन ग्रोइंग है ये टोटली डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। अगर हमने इसकी सिमिलैरिटी का जो मेजरमेंट सिस्टम है वो अगर डिफ़ाइन करना है या हमने सिंपली उसकी स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना है या सीट की सिलेक्शन करनी है, तो ये सारे की सारी चीज़ें एप्लीकेशन डिपेंडेंट होती हैं। अब इसका एल्गोरिथम अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। इनिशियलाइज एस इज इक्वल टू नॉट empty set. So what we do, we take a S as a set and this S is the extracted pixel of the region. Define what similar means. तो हम S को लेते हैं सिंपली extract the pixel of the region। हम S वो वाला एरिया लेते हैं कि वो उसके regions जो हमने सीट पॉइंट लेना है हम उसको लेते हैं। और Q is equal to x नॉट y नॉट, तो हम जो Q है वो हम इमेज देते हैं उसको एज अ Q। एक्सट्रैक्ट पिक्सल P फ्रॉम Q। अब ये इमेज क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं तो हम करते क्या है कि हम इस P को लेते हैं, पिक्सल कोई भी पिक्सल लेते हैं एट लोकेशन x I और y j कोई भी लोकेशन अगर होगी तो हम वहाँ से ये वाले पिक्सल लेते हैं जो कि P होगा और फिर हम उसको सिंपल देखते हैं कि क्या ऐड P to S, तो हम ऐड P to S करते हैं क्या वो S के साथ आ रहे हैं या नहीं। फॉर ईच नाइबरिंग P डैश ऑफ P, तो हमारे पास जो भी उसके नाइबर्स आएंगे P डैश जो नाइबर्स होंगे वो P के होंगे। इफ़ P डैश इज सिमिलर टू P and P dash is not member of S, then add P dash to Q। तो अब हम सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लूप के अंदर चेक करते जाते हैं कि अगर तो P dash is similar to P and P dash is not member of S, जो हमने ये Q की वैल्यू हमने Q जो था ये इमेज था तो P हमने उधर से एक पिक्सल लिया था और फिर हमने इस P के नाइबर्स चेक किए थे। तो अगर हम उसके नाइबर्स देखते हैं और हम ये देखते हैं कि वो आपस में सिमिलर हैं और वो जब सिमिलैरिटी है और वो S के अंदर शामिल नहीं है जो कि हमारा S जो एक सेगमेंटेड रीजन है, अगर उसमें शामिल नहीं है तो हम उसमें उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड P डैश टू Q, तो अगर है तो हम सिंपली उसको ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम सिंपली उसको, अगर वो सिमिलर नहीं है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। इफ़ Q इज इक्वल टू empty देन एंड एल्स रिटर्न टू 1। अब Q हमारे पास क्या है, ये इमेज है।
तो वो इमेज अगर हमारे पास उसके सारे पिक्सेल्स हो गए हैं, रीजन उसके वो एम्प्टी हो गया है, तो हम वहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। अदरवाइज हम करते क्या हैं, 1 पर वापस चले जाते हैं और इसको कंटिन्यू करते जाते हैं। डिफाइन व्हाट सिमिलर मीन्स, तो यहाँ पर हमने ये सिमिलर जो है इसको डिफाइन करना होता है, और ये हमने जिस तरह बात की कि ये टोटली डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, तो इस वजह से ये सिमिलैरिटी क्या होगी हमने इसको डिफाइन करना है। प्रोबेबिलिटिक इन स्मॉल ग्रेडियंट रीजन्स, अगर तो हमारे पास बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्रेडियंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, तो उस सिचुएशन में हम इस यहाँ पर जो ये रीजन्स हैं इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, सेगमेंटेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर जो चेंजेस हैं वो हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, हम उस जो रीजन्स हैं उनको प्रॉपरली सेगमेंट्स नहीं कर सकेंगे। तो अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें कि सिंपल रीजन ग्रोइंग किस तरह काम करता है, एज अ एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास इमेज है टोटल, और इस इमेज में हम सिंपल कोई भी 2 सीड पॉइंट्स लेते हैं। तो हमने यहाँ से सीड पॉइंट सेलेक्ट किए, ये एक सीड पॉइंट हो गया और ये दूसरा सीड पॉइंट। अब ये रैंडम सिलेक्शन की है या ये हमने कैसे इसको सेलेक्ट किया है, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। अब हम करते क्या हैं कि ये जो पॉइंट है इसके नाइबर्स हमने देखे कि क्या इसके नाइबर्स जो भी हैं क्या वो आपस में इसके साथ मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो हम उसको एक बड़े रीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही एरिया में हमारे पास सेम ग्रोइंग हो रही है रीजन की। अब हम इसी तरह हम इसको जब हम इस लेवल पर आ गए तो अब इसके नाइबर्स देखते हैं, ठीक है, क्या इसके नाइबर्स क्या हैं। तो हम इसके नाइबर्स लेते हैं और अगर वो भी मैच कर रहे हैं, सेम रीजन है, कलर की प्रॉपर्टी सेम है, या जो हम डिपेंड करता है हमारे पास कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, अगर हैं तो हम सिंपल उसको ग्रो करते जाते हैं। सेम इसी तरह दूसरे पर भी यही होगा और हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाते हैं। तो एक लेवल आ जाता है कि जब हम इस कंप्लीट रीजन तक पहुंच जाते हैं, जो कि ये ब्लैक लाइंस हैं, तो अगर हम इस तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड है ये डिफरेंट है इस एरिया से, तो हम सिंपल इसको एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ये बाउंड्री पर पहुंचते हैं तो अगर क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ये सिंपल उसको पिक्सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा कि क्या ये एक रीजन है या नहीं है। तो जब हम बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं तो ये हमें सिंपल ये जो एल्गोरिथम है ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, जो लाइन है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हम अभी तक इंटरनल पिक्सेल्स देख रहे थे। क्योंकि इसका कलर ब्लैक है तो हम इस वजह से यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो जब हम स्टॉप कर लेंगे तो ये जो 2 रीजन्स हैं ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। अब ये काम किस तरह करता है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मली वाटर का फ्लो होता है कि जब जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो सेम उसी तरह जो फिलिंग हो रही है उसमें किसी ऑब्जेक्ट की, तो सेम उसी तरह ये फ्लो करता जाता है। अब कुछ एरियाज इसमें ऐसे होंगे जहाँ तक जब हम बाउंड्री पर जल्दी पहुँच जाएंगे तो इससे आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो उसके साइड्स हैं, एरियाज हैं, उसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, रियल एप्लीकेशंस देखते हैं। अब ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें मल्टीपल टेक्सचर्स हैं, मल्टीपल कलर और इंटेंसिटीज़ हैं। तो हम अगर एक सीड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जो ये एक डॉट है, एक पिक्सल से हम स्टार्ट करते हैं, तो इस यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसको मूव कराते जाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में। तो जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसके नाइबर्स हैं, हम उन सब को काउंट करते जाएंगे और उसके जो डायगोनल नाइबर्स हैं उनको भी काउंट करते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे कि क्या वो मैच कर रहे हैं आपस में या नहीं। तो अब अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका साइज़ अब ये हो गया, क्योंकि ये जो बॉर्डर हम इधर आ गए हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये डिफरेंट है। तो इस वजह से यहाँ ये स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से जाना इसका आगे स्टॉप हो गया, लेकिन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो नाइबर्स हैं ये आपस में सेम है। तो इस वजह से हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और सेम
हम इस डायरेक्शन में भी मूव करते जाएंगे, लेकिन जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर भी हम स्टॉप कर देते हैं, तो ये एरियाज़ हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं। अब सेम इसी तरह हम मूव कराते जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो ये सारे डायरेक्शंस जो हमारे पास आ जाते हैं, इन सब में इस लेवल पर आकर हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली जो सेपरेट है, क्योंकि हम यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये एक रीजन को डिफाइन करता है कि ये एक रीजन है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन पिक्सल की आपस में सारी प्रॉपर्टी सेम है। और यहाँ पर हम इस वजह से स्टॉप कर गए हैं क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन है इसकी वजह से सेपरेशन आ गई। हालांकि इस यहाँ के जो रीजन है और इस रीजन की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो नाइबर्स थे, या जब हम यहाँ इस लेवल पर पहुँच गए तो वो ब्लैक थे, उसका इंटेंसिटी डिफरेंट थी, तो इस वजह से हम वहाँ पर स्टॉप हो गए। सेम हम इस तरह कलर के लिए भी कर सकते हैं, कलर इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं, और ये हमें पता है कि कलर इमेजेस के लिए हम RGB वैल्यूज़ लेते हैं, और वो RGB वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ ख़ास कम्बिनेशंस बनाएंगे। तो अगर उस कम्बिनेशंस को हमने चेक करना है कि क्या वो मैच कर रहे हैं उसके साथ या नहीं, तो अगर हम सिंपल सीड पॉइंट्स लेते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो ये डार्क एरिया है, तो जो डार्क एरिया है उसको उसने एक सेगमेंट बना दिया। उसकी वजह यह है रीजन ग्रोइंग की वजह से कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये एरिया डार्क है और इस एरिया से, इस एंगल से लाइट पड़ रही है, और हमने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो वो शायद ऐसा है कि उसमें हमने सिर्फ जो इंटेंसिटी बताई है वो डार्क एरिया की बताई है कि सिर्फ जो डार्क एरियाज़ हैं उनको सेगमेंट करें, तो जो ब्लैक हैं मोस्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारे पास सेगमेंट हो गया अलग से, और जो ये रिमेनिंग एरिया है ये रह गया है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसमें ये मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ सिर्फ इन एरियाज़ को सेगमेंट कर सके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सिमिलैरिटी मेजर कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटी चेक करते हैं रीजन ग्रोइंग के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप कौन कौन से एरियाज़ को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो हम अगर सीड पॉइंट यहाँ लेते हैं तो वो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर हम सीड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा क्या क्या वो उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो वो यहाँ आकर रुक जाएगा। तो ये सिंपली हम अगर सेगमेंटेशन करते हैं कलर इमेजेस के लिए। सेम हम टेक्सचर के लिए भी कर सकते हैं कि अगर हमने टेक्सचर बेस रीजन ग्रोइंग का क्राइटेरिया रखना है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि टेक्सचर जो है अगर तो ये ख़ास शेड्स हैं और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसकी बेसिस पर हैं, तो हम कौन से एरियाज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सचर इसका है और इसका है आपस में डिफरेंट है, सेम इसका और इसका आपस में डिफरेंस आ रहा है, और सेम इस तरह यहाँ पर ये ज़्यादा ब्राइट हैं, तो इस वजह से इसका जो टेक्सचर है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर एरर आ रहे हैं। सेम इस तरह यहाँ हमारे पास इस एरिया में भी एरर आ रहे हैं और यहाँ पर भी एरर आ रहे हैं। तो ये जो जो हमारे पास रीजन ग्रोइंग है, ये इस वजह से इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब हम सिलेक्शन करते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इमेज टू इमेज या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो अगर हमने वो क्राइटेरिया प्रॉपर नहीं रखा हुआ तो सेगमेंटेशन हमारे पास ठीक नहीं होगी। और सेकंड, जो हमने सीट की सिलेक्शन करनी है तो वो सीट की सिलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, तो अगर वो भी प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है तो हमारी सेगमेंटेशन जो है वो हमेशा एक ही जगह पर रह जाएगी। अगर हम सिर्फ सीट यहाँ पर लेते हैं तो वो होगा क्या कि हमारी जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ ये एक एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद जो बाकी सारे इमेज है उसको सेपरेट सेलेक्ट किया जाएगा कि ये बाकी जो है यहाँ से आगे ये एक रीजन है, हालांकि ये इस तरह नहीं है।
क्योंकि हमने सिर्फ सीड पॉइंट यहाँ से लिया था, इस वजह से हम इस एरिया में रुक गए थे। लेकिन अगर हम बाकी एरिया के सीड पॉइंट लेंगे तो इसी तरह वो भी ग्रो करते जाएंगे। तो अब ये टोटली डिपेंड करता है कि हम सीड पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं और वो कैसे ले रहे हैं, और सिमिलैरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अगर हमने सिलेक्शन करनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अब हम दोनों कलर और टेक्सचर की बेस पर सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये अगर ओरिजिनल इमेज है और यहाँ हम देखते हैं कि ये कुछ कलर की बेस पर और टेक्सचर की बेस पर हम उसको अलग करना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा एरिया है जो कि डिफरेंट है कलर की बेस पर और टेक्सचर की बेस पर। ये डार्क एरियाज हैं। सेम इस तरह अगर हम देखते हैं आइज़ को, तो ये आइज़ का एरिया जो है इसकी कलर के और टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। सेम इसी तरह हमारे पास और भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पर क्योंकि ये कलर की बेस पर है तो ये जो शेड्स हैं ये भी एग्जैक्टली अलग से डिफाइन हो रहे हैं, अलग से उसकी सेगमेंटेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सेगमेंट नहीं हुए, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है जो कि ये शाइन वाली इन्फॉर्मेशन है, तो इसको सेगमेंट नहीं किया। तो उसकी वजह यह है कि जो हमारे सेगमेंटेशन का हमने क्राइटेरिया रखा था वो प्रॉपरली इन एरियाज़ को टैकल नहीं कर सकता, और या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि जब हमने सीड पॉइंट्स लिए थे वो इस एरिया में नहीं आए जिसने इसको अलग से डिफ़ाइन किया हो, या ये रीजन फुली ग्रो नहीं कर सके ताकि वो आपस में मिलकर देख लें कि क्या कोई ऐसा एरिया है जो दरमियान में रह गया हो। नाउ ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। हम देखते हैं कि इमेज दैट इज़ here the original image, and then what we have the seed points here. So we select the seed points, and these are the seed points, and then we start growing it. So once we are growing it, then we reach to one certain area that this is the maximum area where we have the similarity measure are similar, the points are similar, so we stop there. And then if we segment it from the original image, we can highlight it that these are the areas that are completely different, yes, segments that are similar to each other. तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी सेगमेंटेशन जो है जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है आपस में मैच कर रही हैं, इस वजह से ये एक रीजन के तौर पर कंसिडर हुआ। तो ये सिंपल सेगमेंटेशन है रीजन बेस। अगर हम रीजन बेस सेगमेंटेशन को कंपेयर करते हैं इमेज हिस्टोग्राम के साथ, तो हम देखते हैं कि जब हम इमेज हिस्टोग्राम लेते हैं और थ्रेशोल्डिंग के थ्रू अगर हमने उसको अलग करना हो तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तो इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें कुछ ऐसे शेड्स हैं जो स्मूथली चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि डार्क एरियाज़ हैं और इससे हम लो में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम इस तरह हमारे पास यहाँ से जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जाते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसकी शेड स्मूथली चेंज हो रहे हैं। तो जब हम इसका हिस्टोग्राम लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जिसमें थ्रेशहोल्ड्स के सेलेक्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसकी वजह यह है कि हमने देखा था कि हम जब थ्रेशहोल्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पीक्स हैं वो ज़्यादा हाइट पे हों, सारे जो पीक्स हैं उसका हाइट पे होना चाहिए, और दूसरे ये जो वैलीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। चूँकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही तो इस वजह से हम यहाँ पर इसकी सेगमेंटेशन थ्रू थ्रेशहोल्डिंग नहीं कर सकते। ये हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एरर्स देंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीजन स्प्लिटिंग एंड रीजन मर्जिंग। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हम रीजन को पहले स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर हम उसको मर्ज करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। आइटरेटिव सब डिवीजन ऑफ द इमेज इन homogeneous region, this is called splitting, and joining of the adjacent homogeneous region, and it's called merging. So what we do normally, we split the image in if it is a homogeneous region, and then we are splitting it until we reach to one level that they are dissimilar from each other, or there are separate properties. And then after that what we do is these separate properties, if they are
there are many other properties which are matching this one specific location, then we combine all these properties and all these small areas, and then we combine it as a one region, and we make this simple segmentation. So what is the basic steps that we need to perform? Region splitting is the opposite of region growing. So what we do, it's totally different from the region growing, and it's a bit of opposite. First, there is a large region, possibly the entire image. पहले हम क्या करते हैं कि पूरे image को as a one region लेते हैं. Then predicted measurement is used to determine if the region is uniform. हम एक measurement हम ये identify करते हैं कि ये जो region है ये एक uniform area है. If not, then the method requires that the region be split into two regions. तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो चेंजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो सिचुएशन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो डिवीज़न है नॉर्मली हम 4 करते हैं, 4 स्प्लिट्स बनाते हैं. हम 2 भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल और भी बहुत सारे तरीक़ों से उसको स्प्लिट कर सकते हैं. देन ईच ऑफ दीज 2 रीजन्स इज़ इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बाय द प्रिडिक्ट मेजरमेंट. और अब जब हम उस इमेज को सब डिवाइड कर देते हैं तो अब हर एक डिवीज़न को हम सेपरेटली देखते हैं कि क्या वो यूनिफॉर्म है या नहीं. तो अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम उसको एक रीजन कंसिडर करते हैं. अगर तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें चेंजेस हैं, उसकी इंटेंसिटी की बेस पर, कलर की बेस पर या टेक्सचर की बेस पर चेंजेस हैं, तो हम उसको फिर सब डिवाइड करते हैं. सो दिस प्रोसीजर कंटिन्यूज अंटिल द रिजल्टिंग रीजन आर यूनिफॉर्म. और हम तब तक उसको सब डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास ऐसा रीजन आ जाए जो कि यूनिफॉर्म हो. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसको डिवाइड करते करते पिक्सल लेवल तक चले जाएं. सो नाउ व्हाट द बेसिक टू स्टेप्स आर देयर. वन स्टेप इज splitting. So split image into region using quad tree representation. अब हम इमेज को डिवाइड करते हैं क्वाड ट्री के थ्रू, और फिर हम उसको मर्ज करते हैं. मर्ज लीव्स ऑफ द क्वाड ट्री विच आर नाइबरिंग एंड सिमिलर. अब हम जो लीव्स आ जाती हैं, हम क्योंकि ट्री बनाते हैं, क्वाड ट्री बनाते हैं, तो जब वो क्वाड ट्री आएगा तो जो उसके लीव्स होंगे हम उनको आपस में कंबाइन करते हैं, अगर तो वो सिमिलर हैं. तो अगर वो सिमिलर हैं तो हम उनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले इमेज को, ये ओरिजिनल इमेज है, और इसके बाद हम उसको स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं, उसको सब डिवीज़न करना शुरू कर देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल रीजन्स आ रहे हैं इस तरह, और फिर जब ये सारे रीजन आ जाते हैं तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं. इसके बाद जो हमने यहाँ बात की थी कि क्वाड ट्री है, तो क्वाड ट्री का आपको अंदाज़ा होगा कि हम उसमें क्या करते हैं, 4 डिवीजन्स करते हैं. इस वजह से इसको क्वाड कहते हैं कि क्वाड ट्री है कि हर बार हमने 4 की डिवीज़न करनी है. तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है. जब हमारे पास ओरिजिनल इमेज आएगा तो वो एक रूट के तौर पर काउंट होगा. फिर हम करते क्या हैं कि उसको 1 2 3 4 में डिवाइड कर लेते हैं. तो ये उसके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है. तो उसके 4 चिल्ड्रन हो गए. फिर हम उसके बाद हर एक चाइल्ड को लेते हैं. अब हमने ये देखा कि 4 थे, तो इनमें से हमने इस एक एरिया को लिया और इसको दोबारा 4 डिवीजन उसकी कर दी, क्वाड डिवीजन्स कर दी, ठीक है. तो इसके हमने दोबारा 4 डिवीजन्स कर दिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से अब इधर आ गए हैं. तो अब ये 4 हो गए. पहले हमारे पास यहाँ पर 4 थे, अब इसके बाद अब हमने इस एक एरिया को लेकर उसके 4 डिवीजन्स कर दिए. सेम इसी तरह हम दूसरा रीजन लेते हैं और उसके भी 4 डिवीजन्स कर देते हैं, और इसी तरह करते जाते हैं. और ये डिवीजन्स क्यों करते जाते हैं? क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, अगर ये यूनिफॉर्म है, ये वाले साइड यूनिफॉर्म है, तो हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल, तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है. लेकिन चूंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी तो हमने क्या किया कि इसको दोबारा 4 के साथ स्प्लिट कर दिया. तो ये आप देख सकते हैं कि ये
दोबारा 4 की स्प्लिट हो गई। तो सेम इसी तरह हम स्प्लिट करते जाएंगे जब तक कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, और ये स्प्लिटिंग जो है वो 4 के नंबर के साथ होगी। तो उसकी वजह यह है कि इसको मैनेज करना, जब हमें पता होगा कि 4 के साथ हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो वो इजीली उसको कलेक्ट करना और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इजी हो जाएगी। So working of splitting and merging, so what is the basic algorithm for it? So we can see that given an image f and a predict q, the basic algorithm is, अब हम अगर इमेज लेते हैं एज f और a predict हम उसकी प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसको सिमिलैरिटीज देखते हैं तो या यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, तो वो क्या होगा, वो q की बेसिस पर होगा। सो r1 इज इक्वल टू f, हम कोई एक इमेज लेते हैं तो उसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। सब डिवीजन इज क्वाड्रेट ऑफ ईच रीजन Ri फॉर विच QRi इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम सब डिविजन्स करते हैं फॉर ऑल द इमेज Ri विद QRi इज इक्वल टू फॉल्स। इफ QRi इज इक्वल टू ट्रू, for every region, merge these adjacent region Ri and Rj such that QRi union Rj is equal to true. Otherwise, repeat step 2. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं, सब डिविजन्स करते हैं इस लेवल 2 पर, और लेवल 3 पर हम उसको मर्ज करते हैं अगर तो उनकी सिमिलैरिटी है। अगर दो रीजन आपस में मैच कर रहे हैं तो हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। अगर मैच नहीं कर रहे तो हम करते क्या है कि उसको सब डिवाइड करते हैं। सब डिवाइड करने के लिए हमें वापस 2 पर जाना होता है। रिपीट द स्टेप 3 अंटिल नो मर्जिंग इज पॉसिबल। अब हम रिपीट करते हैं स्टेप 3 को, यहाँ से हम जाते हैं स्टेप 3 पर, और उस पर हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हम अदरवाइज अगर ये ट्रू होता जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास और स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से 4 से 3 की तरफ जाते हैं और हम जितने भी हमने स्प्लिटिंग की है हम उनको अब मर्ज कर रहे हैं, हम आपस में कंबाइन करते जा रहे हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो सिंपल हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है और इसको हम सब डिवाइड करते जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले ये 4 जो क्वाड्स डिविजन्स थी ये कर लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ गए। अब इसके बाद हमने इसके दोबारा जब 4 इसके 4 इस वजह से नहीं किए गई, इसकी यूनिफॉर्मिटी थी, ये आपस में यूनिफॉर्म थे, तो वो हमारे पास ये वाला लेवल आ गया। तो इस वाले लेवल पे हमारे पास दोबारा सब डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक पूरा रीजन है, तो इस एक रीजन को अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि ये 3 जो हैं ये आपस में तो मैच कर रहे हैं लेकिन ये वाला इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा डिवाइड कर देते हैं, हम सिंपली क्वाड इसकी डिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी क्वाड डिवीजन करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, हम एक स्टेप ये वाला कर लेते हैं कि ये इसके 3 एरियाज हो गए, जो ये 3 हो गए 1 2 3, और ये 4th आ गया हमारे पास। अब हम करते क्या है कि इस एरिया को कंसिडर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इस में आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो 3 हैं आपस में मैच कर रही हैं लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा। तो ये पूरा ब्लॉक जो है, जो हमने स्टार्ट में लिया था, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं। हमने इसको डिवाइड किया तो अब हमारे पास ये वाला लेवल आ गया कि ये जो 2 हैं ये हमारे पास एक कलर में है और ये तीसरा जो ये वाला है ये इस कलर में आ गया, और सेम इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास इधर आ गया। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया तो हमने क्या किया कि इसके भी 4 डिवीजन कर दिए। तो ये अब सेम इसी तरह आ गया 4 डिवीजन। तो हम करते क्या है कि यहाँ से जाते हैं इधर।
तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कलर हो गया और हमने बाकी सारे कलर्स बना दिए। अब इस एक पोर्शन को हम देखते हैं कि ये पोर्शन जब हम लेते हैं जो कि इन 4 का था, जब हम इस लेवल पर थे, तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ब्लॉक है जिसमें half of the regions are dark and half of the regions are with a low intensity. So that's why what we need to subdivide, because all this area is not uniform. So we just split it again and we come here, and this is our splitting, quad splitting. And in this situation what we do, we make it as too dark and too light. अब हमने इसको जब स्प्लिट कर दिया तो हम देख सकते हैं कि हर एक रीजन जो है सेपरेटली वो यूनिफॉर्म है। तो अब अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम करते क्या है, हम स्टेज मर्जिंग करते हैं। स्टेज मर्जिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लीव्स हैं वो अगर आपस में मैच करते हैं तो हम उनको कंबाइन करते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 रीजन्स हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और हम देखते हैं कि ये जो दोनों हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये बाकी जो हैं ये तो ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेप बैक चले जाएंगे। तो एक स्टेप बैक जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो 2 रीजन्स थे और ये जो 2 रीजन हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। और हम देखते हैं कि ये 3 जो थे आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि ये 3 आपस में मैच कर रहे हैं और ये 3 आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं और ये जो 2 हैं इनको आपस में कंबाइन करते हैं। तो जब हम इस लेवल पर आ गए तो लास्ट जो है हम यहाँ पर आते हैं, जो ये वाला स्टेज है कि अब हम इन सब को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आउटपुट के तौर पर ये आ जाएगा। तो अब सिंपल सा मेथड है, हम डिवीजन करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो हम वहाँ पर स्टॉप कर लेंगे और उसके बाद मर्जिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो एक एरिया में भी हो सकता है कि हम उसको सब डिवाइड करते जाएं और वो पूरे इमेज के ऊपर भी हो सकता है, अगर तो पूरा इमेज जो है वो उसमें डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं। अब हम उसकी जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल इमेज है। हम यहाँ पर डिवीज़न करते हैं 8x8 की और फिर हम उसके बाद डिवीज़न करते हैं 16x16 की और उसके बाद हमारे पास 32x32 आ जाती हैं। तो जब हम उसको डिवाइड करते जाते हैं तो सेम इस तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक एरिया आ जाएगा कि जहाँ से हमारे पास सिमिलैरिटीज़ या यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो उसके बाद हम रिवर्स स्टार्ट कर देंगे उसकी मर्जिंग। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं ग्रे लेवल इमेज है। तो ये ओरिजिनल इमेज है। जब हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, उसकी सेगमेंटेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सेगमेंटेशन की वजह से मल्टीपल एरियाज़ आ गए हैं। ये जो एक हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है जिसको एक अलग से ग्रे लेवल असाइन किया है। तो उसकी वजह ये है कि ये एक शेड हमारे पास जनरेट हो रहा है यहाँ पर। सेम इस तरह ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ और वो इस तरह चेंज होता जा रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सेगमेंटेड एरियाज़ आ गए हैं। इसी तरह ये एक सेगमेंटेड एरिया आ गया डार्क और साथ में जो बाकी हैं ये मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंटेड एरियाज़ आ गए हैं। तो हम सिंपल इसको सब डिवाइड करते जाते हैं अनटिल के उसमें सिमिलैरिटीज़ आ जाते हैं और फिर हम उनको आपस में मर्ज कर लेते हैं। इसी तरह हम कलर इमेज में भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कलर इमेजेस लेते हैं और हम इसकी सेगमेंटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इनको मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के बाद कुछ ऐसे एरियाज़ जिनकी सिमिलरिटी जिसमें यूनिफॉर्मिटी है तो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जो एक सेगमेंट बना रहा है, तो हम इनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल और जो एरियाज़ हैं तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ जो एरर्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो सेगमेंटेशन में इस एरिया में इसको एक एरिया कंसिडर करके सेगमेंट किया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसको एक एज एक सेगमेंटेड एरिया है। तो इसकी वजह यह है कि जो हमने सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं, उसकी बेसिस पे क्योंकि हुआ है। तो यहाँ जो यूनिफॉर्मिटी है
वो अगर हम कलर की बेस पर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो इस वजह से वो कलर यहाँ पर मैच कर रहा है। अगर हमने यूनिफॉर्मिटी टेक्सचर की बेस पर देखनी है तो वो डिफरेंट होगा फिर, और अगर हमने इंटेंसिटी की बेस पर देखनी है तो रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट आएंगे। तो हम डिपेंड करता है कि हमने सिमिलैरिटी यूनिफॉर्मिटी किस लेवल पर हम देख रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। अब हम यहाँ पर रिजल्ट्स देखते हैं थ्रेशोल्डिंग की और स्प्लिट एंड मर्ज की। अगर हम कंबाइन करते हैं कि इन को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और हम यहाँ पर इसकी स्प्लिट एंड मर्जिंग के थ्रू करते हैं, और जब हम इसको थ्रेशोल्डिंग के थ्रू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये वाली लीव है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, लेकिन हम थ्रेशोल्डिंग के थ्रू देखें तो इसमें हमारे पास नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट किए हैं वो ड्यू टू सम इल्यूमिनेशन और ड्यू टू सम रिफ्लेक्शन हमारे पास थ्रेशोल्ड की वैल्यू प्रॉपर्ली सेलेक्ट नहीं हुई। जो हमने हिस्टोग्राम लिया था उसमें वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग हो गया। इस वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि स्प्लिट एंड मर्ज जो है वो ज़्यादातर बेहतर रिजल्ट्स हमें जनरेट करके बताएगा। So there are also some other different segmentation methods. One is called graph cut segmentation, watershed with marker, texture based segmentation, color based segmentation, and there are so many other. तो बहुत सारे सेगमेंटेशन के मेथड हैं, और अभी तक ये ऑन गोइंग रिसर्च है कि हम किस तरह सेगमेंटेशन कर सकते हैं। टोटली ऐसे ऑटोमेटिक सेगमेंटेशन मेथड हैं जिसमें कोई भी हमें इनपुट नहीं देना होता, वो ऑटोमेटिकली सेगमेंटेशन करते हैं, और ऐसे भी हैं जिसमें हमें यूज़र की इंटरेक्शन चाहिए होती है ताकि वो सेगमेंटेशन जो है वो बेहतर हो। प्रायर नॉलेज चाहिए होता है इमेज से रिलेटेड ताकि वो सेगमेंटेशन बेहतर हो। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंटेशन मेथड्स हैं, हम इन सारों को कवर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिक काम किस तरह हो रहा है। तो बाकी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो वो हम प्रॉपरली उसी से रिलेटेड सेगमेंटेशन जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और हम इसके टेक्सचर की बेस पर सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो हम करते क्या हैं कि इस इमेज को लेते हैं जो कि 600 बाय 600 पिक्सल इमेज है, choosing closing of a using a disk of 30 pixel of radius। हम करते क्या है कि 30 पिक्सल ऑफ रेडियस जो है उसको सेलेक्ट करते हैं कि वो जो 30 पिक्सल ऑफ रेडियस जो भी शेड बना रहा है तो हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं। तो हम इन टेक्सचर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो रेडियस से रिलेटेड पिक्सल इंफॉर्मेशन है हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओपनिंग यूजिंग अ डिस्क ऑफ 60 पिक्सल ऑफ रेडियस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास 60 रेडियस ऑफ पिक्सल्स हैं, ये जो साइज़ में हमारे पास रेडियस बड़ा बन रहा है, तो हम इनको सिंपली ओपनिंग में रख लेते हैं कि हमने इन इमेजेस को अलग से करना है, हमने इनको अलग से इस एरिया को अलग से ओपन करना है। तो हम सिंपल इसको जो रेडियस है उसकी बेसिस पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि 60 पिक्सल रेडियस एक साइड पर हैं और जो 30 रेडियस पिक्सल हैं वो दूसरी साइड पर है। फिर सेगमेंटेशन बाउंड्री ऑब्टेन एज अ मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट। अब हम इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि हम सेट थ्योरी से लेते हैं। तो वो सेट थ्योरी की बेसिस पर हम इसको सेगमेंट कर देते हैं। मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि हम इमेज को एज अ सेट कंसिडर करते हैं, हम उसको एज अ वेक्टर ले लेते हैं और वो वैल्यूज़ जो हैं एज अ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, बजाय इसके कि हम उसको एज अ पिक्सल रीड करें, हम उसको एज अ सेट यूज़ करते हैं। फिर हम उस सेट को के ऊपर मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी अप्लाई करते हैं और वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस के थ्रू, जिसमें हमारे पास इरोजन
और उसमें ओपनिंग है और उसमें क्लोजिंग है, ये सारे डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। हम इसको यूज़ करते हुए सिंपल उसकी जो टेक्सचर की बेस पर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्सचर बेस्ड सेगमेंटेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास कलर बेस्ड सेगमेंटेशन है। हम इसमें कलर की बेस पर सेगमेंटेशन करते हैं, और कलर बेस्ड सेगमेंटेशन जो है वो टोटली डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कि हमने इस इमेज के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर तो हम कलर की जो वैल्यूज़ की बेस पर कर रहे हैं तो वो टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, सेगमेंटेशन डिफरेंट होगी। और अगर तो हम उसके जो इंटेंसिटीज़ हैं उसकी बेसिस पर कर रहे हैं तो वो टोटल डिफरेंट किस्म की सेगमेंटेशन होगी। इसी तरह हमारे सेगमेंटेशन जो है वो टोटली डिपेंड करता है टेक्सचर की बेस पर, कि अगर टेक्सचर की बेस पर हम ले रहे हैं तो वो जो सेगमेंटेशन है कलर इमेजेस की वो डिफरेंट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम सिंपल इमेज लेते हैं और ये HSI स्पेस में है, HSI स्पेस में हमने इसकी कोडिंग की है, तो हम देखते हैं कि ये एक जो सेगमेंटेशन है कुछ ऐसे एरियाज़ के जिनकी ख़ास प्रॉपर्टी है, हम उनको सेगमेंट कर रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ग्रे स्केल इमेज में, और ग्रे स्केल के बाद हम उसके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। अगर तो हम इस कलर बेस्ड सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम टेक्सचर की बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं, उसकी कलर की बेस पर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और चूंकि हमने उसको कन्वर्ट किया है ग्रे स्केल में, तो ग्रे स्केल लेवल पर हम उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं। कलर बेस अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बाइनरी सेचुरेशन ऑफ मास्क थ्रेशोल्ड एट 90%, हम इस देखते हैं कि अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू लेते हैं मास्क के लिए सेचुरेशन ऑफ बाइनरी इमेज, जो हमने यहाँ इमेज लिया था, हमने इसको एज ए बाइनरी इमेज कन्वर्ट करके फिर उसमें सेचुरेशन का जो मास्क था वो 90% कर दिया, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह विजिबल है। प्रोडक्ट ऑफ द मास्क बाय द ह्यू, हमने जो ह्यू की वैल्यूज़ ली हैं उसके साथ इसका प्रोडक्ट ले लिया, तो हमने इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेकर हमारे पास जो इमेज है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हिस्टोग्राम लेते हैं इस इमेज का, तो हमें कुछ सिंपल पीक्स नज़र आ रहे हैं कि ये एक ऐसे पीक है जिससे हम जो कुछ क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एरिया बहुत लो है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी हाई है तो हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर हम इनको थ्रेशोल्ड लगा लें तो हम इसको अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं इसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये जो लाइट इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर ये विजिबल है इस इमेज के अंदर, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। तो ये चूँकि है कलर इमेज, लेकिन कलर इमेज के ऊपर अगर हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं और वो फ़िल्टर्स जो हैं वो उस इमेज को स्मूथ करें, उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें, और उसकी बेसिस पर हम फिर आगे सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और हम अगर प्योर कलर इमेजेस के साथ उसकी सेगमेंटेशन करेंगे तो वो कलर की बेस पर हो सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कलर की बेस पर हम चेक कर सकते हैं, और हमारे पास टेक्सचर की बेस पर हो सकते हैं। अब चूंकि कलर की बेस पर हम अगर करना चाहेंगे तो हमें ये पता है कि कलर जो है वो क्यों RGB स्पेस में है, तो RGB के लिए हमें कोई ऐसा एरिया डिफाइन करना होगा कि अगर तो वो इस एरिया के अंदर आएगा, वो RGB की वैल्यू उस एरिया में आएगी, तो फिर हम उसको एज अ वन सेगमेंट सेलेक्ट करें, क्योंकि टोटली हमारे इस इमेज के शेड्स और इमेज की कम्बिनेशंस पे डिपेंड करेगा कि जो RGB की वैल्यू हम रख रहे हैं वो किस रेंज से किस रेंज तक है। तो अगर हम ये रेंज डिफाइन कर लें तो वहाँ पर हम सेगमेंटेशन पर बहुत ईजीली कर सकेंगे। सो RGB स्पेस सिलेक्शन ऑफ कलर सिमिलर टू क्राइटेरियन DZA इज़ ग्रेटर देन D0। तो हम सिंपल उसका क्राइटेरिया ये रख सकते हैं कि अगर हम पहले
RGB स्पेस में उस RGB की वैल्यू को डिफाइन कर लें, फिर उसके बाद हम सिंपल उसको एक सेगमेंट बना सकते हैं। अगर वो सेगमेंट D0 से 0 हो और D0 से ग्रेटर हो, सो DZ and A is equal to absolute value of Z minus A is, and that is equal to Z minus A to the power T Z minus A into and then the total power is under the root. So this is the under root, and then if this is the DZA, and then we have DZA, so we can also define it as a DZ Z minus A to the power T, and then C is one constant value minus to the power minus 1 into Z minus A, and then again under the root. तो हम इस को सिंपल कलर इमेज सेगमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया हमारे हो सकते हैं, मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं अप्रोचेस, क्योंकि RGB की जो हमारे वैल्यू है इसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगी। तो RGB की वैल्यू हम रख सकते हैं एज अ क्यूब। अगर हम इमेज क्यूब को यूज़ करते हैं तो रेक्टेंगल के तौर पर रख सकते हैं, हम इसको एज अ सर्कल के तौर पर रख सकते हैं। तो हम हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम इमेज का जो RGB का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम किस रेंज में रखना चाह रहे हैं। तो अब ये हमारे पास इमेज की सेगमेंटेशन है। हम अगर इसको देखते हैं सिंपल आफ्टर दिस segmentation of thresholding using thresholding, but before that what we did, we take out the binary image and using some saturation of this saturation we make the dot product with the value of hue, and then we find out that there is a histogram. If we take the histogram, then we can identify a threshold value, and based on that threshold value we can have the segmentation. So this segmentation is done by manual selection of color of interest. So we can also select this color from which color we want to make this segmentation, and average color computation we can also do it with using average color computation. So A is equal to A of R, A of G and A of B. तो जो भी हमारे पास RGB की वैल्यूज़ हैं हम उसका एवरेज ले लेते हैं और फिर उसके थ्रू हम उसकी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कलर ऑफ सेलेक्टेड पिक्सल कंप्यूटेशन, और साथ में हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, एंड दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा R, सिग्मा G एंड सिग्मा B। तो हम जब उसके स्टैंडर्ड डेविएशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम उसकी डायरेक्शंस और उसके जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ द पिक्सल दैट हैव अ रेड चैनल वैल्यू इन द इंटरवल। अगर हम सिर्फ रेड इंटरवल को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम इस एरिया को देखें जो ये वाला है, तो सिर्फ रेड चैनल के लिए जो अगर हम सिर्फ रेड आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से रेड कौन से हैं हमारे पास, जो इंटेंसिटीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा A of R माइनस सिग्मा R, A of R प्लस सिग्मा R। तो ये अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं इस कलर इमेज की। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और आज हमने जो बेसिक मेथड थे वो सिमिलैरिटी बेस सेगमेंटेशन हम देख रहे थे, और सिमिलैरिटी बेस में हमने जो बेसिक रीजन से रिलेटेड थे वो रीजन की जो प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए वो हमारे पास थी रीजन ग्रोइंग एंड रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो हमने ये देखा कि रीजन ग्रोइंग जो है वो सिंपल अगर हम एक सीड पॉइंट लेते हैं और उसको हम ग्रो करते जाते हैं तब तक के जब तक वो सिमिलर है,
तो हम उसको सिमिलैरिटी उसकी मैच हो रही है सीड पॉइंट के साथ, तो तब तक हम उसको ग्रो करते जाते हैं। और जैसे ही वो सिमिलैरिटी नहीं मिल रही उसको, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं और उसको एज अ रीजन, वन रीजन कंसिडर करते हैं जब तक जिस पॉइंट तक हम मूव कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास दो इश्यूज थे, एक था कि हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया कैसे रखना है, और दूसरा हमारा सीड पॉइंट की सिलेक्शन कैसे होगी, कहाँ से हमने सीड पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और कैसे करने हैं। दूसरा अब मेथड जो था रीजन सेगमेंटेशन के लिए या रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन के लिए, तो उसमें रीजन स्प्लिटिंग और मर्जिंग है। तो ये टोटली अपोजिट था रीजन ग्रोइंग के। वहाँ हम सिमिलैरिटी जब तक है तो तब तक हम उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। यहाँ पर जब तक सिमिलैरिटी नहीं है तो तब तक हम उसको डिवाइड करते जाते हैं। तो सिंपल हम डिवाइड करते हैं हर एक इमेज को क्वाड ट्री के थ्रू। मतलब ये हुआ कि हम उसके 4 डिवीज़न करते हैं हर एक एरिया के। तो 4x4 और फिर 4 के अगेन हर एक एरिया के दोबारा 4 करते जाते हैं, और इसी तरह हम करते जाएंगे। तो ये जो एक ट्री जनरेट होगा क्वाड ट्री। तो हर एक रीजन को हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि जो हर रीजन है वो सिमिलर नहीं हो, उसमें चेंजेस जो हैं वो जब तक स्टॉप नहीं हो जाती तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो अब जब हमारे पास स्प्लिटिंग आ जाएगी तो उसके बाद हम लीव्स लेते हैं। जो लीव्स के अंदर जो भी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले लीव्स हैं हम उनको आपस में कंबाइन करते जाएंगे, और हम रिवर्स स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम रीजन्स को आपस में कंबाइन करते जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीव नोड्स। और अगर वो आपस में मैच हो रही हैं ड्यू टू दिस क्राइटेरिया, if it is based on color, or if it is based on intensity, or if it is based on texture, then we will combine all these nodes. तो जब तब तक हम इसको कंबाइन करते जाएंगे जब तक कि हम टोटल जो स्प्लिटिंग हमने की है वो मर्ज ना हो जाए, वो आपस में मिल ना जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक था रीजन स्प्लिटिंग का एंड मर्जिंग का, और साथ में हमने देखा कि रीजन ग्रोइंग किस तरह काम करता है। साथ में हमने ये भी थोड़ा सा देखा कि टेक्सचर बेस्ड सेगमेंटेशन कैसे होती है। हमने सिंपल टेक्सचर देखने होते हैं एरियाज़ के, और उसकी बेस पर हम उसके सेगमेंटेशन करते हैं। तो टेक्सचर बेस टोटली डिपेंड करता है अगेन हमारे सीट के ऊपर। हमारे जो टेक्सचर की प्रॉपर्टी हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि किस टेक्सचर को हमने मैच करना है, और उसके बाद हमने ये देखा कि कलर बेस्ड सेगमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिक और ये तरीके हैं कि हम उसके ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें, या हम उसकी कलर की इंटेंसिटी देखें। तो कलर की इंटेंसिटी देखने के लिए हमें वो कलर के रीजन जो कम्बिनेशन के जो एरिया बन रहा है हमने उसको डिफ़ाइन करना होता है कि कौन RGB की जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट अगर हम मैच करेंगे तो जाहिर है वो तो चंद एक ही ऐसे पिक्सल होंगे जिनके साथ वो एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। वो भी डिपेंड करता है हमारे इमेज के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने एक रीजन अगर एरिया डिफ़ाइन कर लें कि अगर ये उसका एरिया है कि अगर RGB की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हैं तो ये एक रीजन कंसिडर कर लें। तो हम उसको एज अ रीजन कंसिडर करने के बाद हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। तो कलर की बेस पर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम देख सकते हैं डिटेल से डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन। जब हमें किसी एक ऐसे काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे रिलेटेड उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक ऑनगोइंग रिसर्च है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।